The latest as far as the Air India plane crash is concerned, 41 DNA samples, they have been matched, and it is a race to complete the DNA matches. 36 forensic experts, they are engaged in this operation 3 days after Air India crash. Meanwhile, it is a desperate wait for the DNA test for a lot of these families waiting to identify their loved ones. The fight for dignity as well in death. Doctors are knee-deep in heartbreak. NDTV is getting you these live reports from the forensic centers in Gujarat. In fact, the doctors are fighting to give ID to the remains. Look at the process for the analysis of DNA from the body parts, and especially in case of the charred body, where it's burnt very heavily. In that case, extraction and analysis of DNA is very, very typical. We start with cleaning the sample. It takes a lot of time because we have to clean it in such a way that no foreign particles or any other material on the that body part. For example, if it is bone, then we have to see that clear bone, and then only we can extract the DNA from that. Then it has been submitted for the isolation and extraction. Isolation and extraction process, in which I just give you an example. For example, if it is a bone, then we have to convert it into bone, into powder. And then if it is a teeth, then first of all we have to make a pieces of the teeth, and then only we can convert it into the powder. This is being a very complicated and a very where we need the skilled persons. So it takes a long time. All the process which I described are taking more than 2 to 3 hours each and every step. फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। All right, I'm currently joined by my colleague Gopi Manihar to get us the latest as far as the DNA sampling is concerned. In fact, from what we understand at the moment, 41 DNA samples, they have been matched, and it is indeed, Gopi, it is indeed a race to match and complete the DNA matches in order to, give a sense of closure to a lot of these families who have been waiting since that deadly air crash. बिल्कुल, देखिए अब तक 72 आवर्स जितने ना वक्त हो चुका है ये पूरा जो हादसा हुआ था, उसके बाद अभी भी एफएसएल के अंदर डीएनए मैच करने का काम जो है वो लगातार 24/7 चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिजन है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें उनके अपनों के मृतदेह जो है वो सौंप दिए जाए। हालांकि बिना चेकिंग के, बिना डीएनए टेस्ट के वो दे पाना मुश्किल है, किसी को भी पहचाना नहीं जा सकता है। हालात ये है कि बॉडी इतनी ज्यादा डिकम्पोज हो गई है, वहां पे इतनी ज्यादा जल चुकी है बॉडी की, उसके हर एक पार्ट को लेकर उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। कई ऐसी बॉडीज थी जो टुकड़ों में बट गई थी, तो उसके भी हर एक पार्ट को वहां पे डीएनए टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही उसे सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रोसीजर में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। अब तक 41 जितने लोग जो है उनका डीएनए टेस्ट जो मैच है वो हो चुका है, और उसी में से एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, उनका भी आज सुबह करीब 70 आवर्स के बाद उनका डीएनए टेस्ट हो पाया और उनका डीएनए मैच हुआ है। उसके बाद उनके परिवार के लोगों को उनकी डेड बॉडी जो है वो सौंप दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से 24/7 लगातार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो इनिशियल डीएनए टेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं, और डीएनए टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो भी काफी लंबा रहता है। वैसे में ये तो जली हुई बॉडी है, तो उसका डीएनए टेस्टिंग जो है वो टाइम ले रहा है। कई सारे पार्ट्स में बॉडी बटी हुई है, तो उसमें भी काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। लगातार
जिस तरीके से गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि लगातार जो टीम है वो काम कर रही है और अभी भी डीएनए टेस्टिंग का जो काम है वो चल रहा है। एक और बड़ा सवाल जो ये है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन एफर्ट्स हो रहे हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उसमें जो फैमिलीज़ हैं जो वेट कर रही हैं उनके लिए भी बहुत ही दुखद समय है। किस तरह का सपोर्ट जो है वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, उन फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है इस बहुत ही मुश्किल घड़ी में? बिल्कुल, देखिए इसमें करीब 40 to 50 जितने फॉरेन नेशनल थे और बाकी पूरे गुजरात के से राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, इस तरीके से अलग अलग इलाके से आए हुए लोग जो थे काफी ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। परिजन जो है वो भी लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट जिस तरीके से उस वक्त गृह मंत्री ने बताया था कि करीब 1.5 लाख लीटर जो पेट्रोल था उसमें ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरी तरीके से कई जो प्लेन है उसके परछक्के उड़ गए थे। तो वैसे में बॉडी पार्ट्स जो है वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे। किसी का सर मिला, किसी का हाथ मिला, किसी का पैर मिला, इस तरीके के हालात है। अब एक पूरा बॉडी कंपाइल करके उसका डीएनए करना वो काफी मुश्किल है। मतलब अगर एक बॉडी है तो उसके अलग अलग सैंपल्स है, आपको उसी सैंपल्स को उसके साथ मैच करना है। और देखिए जितने फॉरेन नेशनल्स है तो उसमें काफी ज्यादा करीब 50 जितने फॉरेन नेशनल्स भी है, तो उनमें कहीं मिसमैच ना हो जाए ये भी हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ रहा है। यानी हर एक चीज का एक पूरा सीक्वेंस बनाया जाता है और उसके बाद ये डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट फाइनल किया जा रहा है। तो ये सारी जो प्रोसीजर है ये काफी ज्यादा टाइम ले रही है।